Students, in our previous video we have discussed the definition of determinants, the how to find the value of the determinant, minors and cofactors, as it is a part of finding the value of a determinant. Moving on, we are going to discuss the properties of determinants here. It's very important that properties of determinants help us to find the value of a determinant without actually expanding it along a row or a column, and finding value just putting the properties into the rows and columns and getting the answers in a very single number, okay, is the major thing to focus on while reading, while studying the properties of determinants. Are the more utmost target is to reduce the value of determinant to a single number without expanding the whole determinant along a row or a column. So proceeding, the very first property of the determinant is that the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. I have given the as I have told you earlier that I have given the clarification in term of matrices. एक बात और ध्यान देनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू लर्न. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम सीधा वो स्ट्रेट लाइंस डाल के उसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की शक्ल दे देते हैं, बट एक्चुअली वी आर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ matrix. Clear? So value of determinant is never going to change अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं. यही हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है, टू टेक अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या होता है कि जस्ट हम इंटरचेंज कर देते हैं. लेट अस से अगर मैं लूँ एक clear, I have taken this matrix. Now I'm just taking its transpose. तो क्या होगा, ये ए बी सी जो है वो कॉलम बन जाएंगे, डी ई एफ जी एच आई. क्लियर? अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. क्लियरली अगर मैं यहाँ ओपन करूँ ए से, तो आई हैव ए मूविंग और एक्सपैंडिंग थ्रू दिस रो वन, तो मेरे पास ए इंटू इट्स को फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो वो निकालें तो इट विल बी ई आई इंटू माइनस एच एफ. क्लियर? अब बी है तो बी से आप करोगे, इधर देखें तो ये बन जाएगा डी आई माइनस जी एफ, और अगर आप सी से देखेंगे तो ये बन जाएगा डी एच माइनस जी ई. नाउ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विद इट्स ट्रांसपोज. अब मैं यहाँ भी सेम करने वाली हूँ और इसे कॉलम वन से खोलने वाली हूँ. अब कॉलम वन चेक करें तो मेरे पास ई आई माइनस एफ एच ही बन रहा है. क्लियर? डेफिनेटली माइनस बी हो जाएगा. इसे भी अगर चेक करें, रो कॉलम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर डिलीट कर दें तो वही डी आई माइनस एफ जी आ जाएगा, और प्लस सी करें तो आई गॉट डी एच माइनस ई जी. Clear? So there is no difference between the both. So here we have proved that determinant of A is equal to determinant of its transpose, or by just by interchanging rows and columns there will be no difference in finding the real value or the value of the determinant. Clear? आप चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है. Let us take an example with numbers also.
So I'm taking example. Here you are given 2 minus 2 5 6 0 4 1 5 and minus 7. Here तो अगर इसको हम खोलें तो I have taken and expanding to row 1 तो ये बन जाएगा 2 it is 0 minus 20 plus 3 it is minus 42 minus 4 आप साथ साथ चेक कर रहे हैं 30 माइनस 0 और इसे आप चेक करेंगे तो दिस इज माइनस 40 माइनस 138 प्लस 150 रिजल्टिंग आंसर इज माइनस 28। अब इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेके ये बनेगा 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 एंड माइनस 7। तो इसकी वैल्यू अगर वही चेक करें 2 से तो ये मेरे पास फिर से 0 माइनस 20 आ जाएगा। 3 चेक करें माइनस 42 माइनस 4 आ जाएगा। 5 चेक करें अगेन आई गॉट द सेम नंबर्स, तो वही नंबर्स आएंगे and I'll get the answer minus 28. So here also with taking an example and both ways I have proved that the value of determinant remains unchanged if I take the transpose of the given matrix. Clear? Moving on to the second property. Second property क्या कहती है? If any two rows of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes by minus sign also. मतलब कि अगर हमने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू कॉलम्स ऑल्सो, टू रोज एंड कॉलम्स ऑल्सो। तो अगर हम कोई दो रोज और दो कॉलम्स इंटरचेंज कर देते हैं, क्लियर, तो वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है ज़्यादा फर्क ना डाल के सिर्फ उसका नेगेटिव साइन बढ़ जाएगा। आप सोच सकते हो कि वो ए बी सी अगर सेकेंड रो में आ जाता है, पहले वो प्लस माइनस प्लस के साथ जाएगी, नीचे अगर सेकेंड रो में पहुंच गई उसे एक्सपैंड करेंगे तो वो माइनस प्लस माइनस में पहुंच जाएगी। तो वाइल एक्सपैंडिंग आई एम टेकिंग वन मैट्रिक्स, लेट अस टेक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर? तो मेरा जो B है, B इज़ अ मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रोज। तो मैंने B बना दिया, मैंने इसे सॉरी नॉट now I'm writing interchanging the second row with the first row, so I'm writing this. Clear? So A और B are the two matrices जिसमें interchange कर दिया। अब मैं अगर इसे इसका determinant find करूँ तो मेरे पास यहाँ पे mod A, इसको अगर चेक करते हैं तो A1 is B2 C3 ये आएगा। क्लियर? प्लस माइनस A2 ये क्या बन जाएगा, इसको वो कैंसिल करें तो B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 करें तो ये बन जाएगा मेरे पास दिस B1 C2 माइनस B2 C1। क्लियर? अब इसकी बारी है। नाउ आई एम एक्सपैंडिंग थ्रू दिस रो और इसमें क्या लेना है, मुझे माइनस A1 लेना है। अब माइनस A1 लेना है, अगर मैं देखूं तो दिस रो एंड दिस कॉलम टू बी, तो ये बन जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3, द सेम एज आई हैव गॉट हेयर। ठीक है, अब मेरे पास प्लस A2 आएगा। A2 को चेक करें तो वो वाला रो और वो वाला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3, द सेम आई गॉट हेयर। और माइनस A3 करेंगे
तो अगेन आई गॉट दिस वन. अब इसमें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ माइनस का. अगर मैं माइनस निकाल लूँ कॉमन तो वही मेरे पास ब्रैकेट आएगी सेम. क्लियर? तो इट विल बी माइनस. क्लियर? तो यही हमने यहाँ पे बताया है कि इसमें एक माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा. और द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि अगर वो दो रोज़ इंटरचेंज करते हैं तो वही एक माइनस और बढ़ के प्लस हो जाएगा. तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट property. Moving on to the next property, if any two rows or columns are identical, the value of determinant is 0. Clear? तो ये हम किसी एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं. आप अगर चेक करें, इफ़ वी इंटरचेंज, मैं एक हमने अभी कहा कि जो डेल्टा है अगर आप वो कर देते हो, एक रो को चेंज कर देते हो तो ये माइनस डेल्टा बन जाएगा. क्लियर? इफ़ वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट, क्लियर, तो देन देयर विल बी नो चेंज. उसी आइडेंटिकल रोज को अगर आप वो देखोगे तो नहीं चेंज होगा. तो ये डेल्टा जो बनेगा वो माइनस डेल्टा के इक्वल आ जाएगा. क्लियर? और जिससे 2 डेल्टा 0 हो जाएगा और जिससे डेल्टा 0 हो जाएगा. वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल ऑल्सो. आई एम टेकिंग ए इज इक्वल टू, मान लो 3 2 3 है, 2 2 3 है और अगेन 3 2 3 है. ठीक, इसको मैं एक्सपैंड करती हूँ. आई एम टेकिंग 3, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 6. और सॉरी, दिस इज़ नॉट प्लस, दिस इज़ माइनस 2. ये बन जाएगा मेरे पास 6 माइनस 9 और ये 3 के साथ बन जाएगा 4 माइनस 6. लेट्स होप कि ये ज़ीरो आ गया. 6 minus 9 is minus 3. Minus 3 into minus 2 is plus 6. And this is minus 6, which is 0. Clear? तो यहाँ पे R1 और R3 आइडेंटिकल है और इससे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है. क्लियर? Moving to the next property. Next property says that the value of determinant become k times the original determinant if each element of a row column is multiplied by k. एक रो या एक कॉलम का हर एलिमेंट अगर k से हम मल्टीप्लाई करते हैं, only then the whole determinant value is multiplied by k. ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी पढ़ा था. इसका आगे एक्सटेंशन भी है हमारे पास. यहाँ एक एग्जाम्पल लेके करते हैं. लेट अस टेक दैट a इज़ अगेन a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. अब मैंने एक और b बना लिया है, जो कि कैसे बनाया? किसी एक रो को मैंने, रो के हर एलिमेंट को मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी चीज़ें मेरी वैसे ही है. दिस इज़ द अनदर मैट्रिक्स by just multiplying each element of a row by a scalar k. ये बड़े काम आते हैं. ये मेन प्रॉपर्टी की तरफ जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी तरफ बढ़ाते हुए काम आने वाली है ये. अब इधर मॉड a अगर आप निकालेंगे तो ये a1 मल्टीप्लाई होगा अपने कोफैक्टर के साथ, फिर b1 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी दिस मस्ट बी माइनस, अपने कोफैक्टर के साथ, फिर c1 मल्टीप्लाई होगा अपने कोफैक्टर के साथ. और अगर वही आप मॉड b का वो लेते हैं तो आपके पास k a1 मल्टीप्लाई होगा, k b1 मल्टीप्लाई होगा और
k(c1) मल्टीप्लाई होगा। तो जस्ट यू गेट द कॉमन आउट ऑफ ऑल द टर्म्स, तो आपके पास सेम टर्म बच जाएगी। क्लियर? तो ये बन जाएगा इट इज़ k टाइम्स मॉड a। क्लियर? तो ये सारी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी। और द वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज़ कि अगर हमारा जो A मैट्रिक्स है, क्लियर, इफ आई हैव A मैट्रिक्स और मान लो थ्री ऑर्डर 3 का है और मैंने तीनों रोज़ के साथ k मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये k³ बन जाएगा और मॉड a के साथ इसका। क्लियर? तो मैंने अगर वही तीनों के साथ, मतलब जिस यहाँ पे जो जनरलाइज्ड है कि जो नेक्स्ट आपका वो आएगा उस दैट k⁻n is multiplied with the original determinant value। ये k टाइम्स तो एक बार एक रो को मल्टीप्लाई करने के साथ है। अगर मैं तीनों के साथ कर दूं तो मेरे पास k³ जो आएगा वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अगर if each element of a row or a column is expressed as sum of two or more elements or terms, then determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। क्लियर? ये ज़रा लिख के पता करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। लेट इट बी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A1 प्लस λ1, A2 प्लस λ2, A3 प्लस λ3 और यहाँ पे है B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर? तो यहाँ मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आएगा? A1 A2 A3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 and the second or third rows become same। क्लियर? तो ये आपको यहाँ वेरीफाई करना है। क्लियर? तो इसे वेरीफाई आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। What to do is कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ मॉड a को along the row 1, तो A1 प्लस λ1 इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, A2 प्लस λ2 इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और दिस शुड बी माइनस, और A3 प्लस λ3 इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? और अगर आप इसे लिख लें A1 A प्लस λ1 अगेन माइनस A2 1 2 माइनस λ2 this प्लस A3 this, तो ये मेरे पास आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो दिस डिटर्मिनेंट, ये आपके पास पहला डिटर्मिनेंट आ गया। आई हैडंट गिवन इट्स नेम, तो ये बन जाएगा B प्लस C। अगर मैंने यहाँ पे ये आपके पास अगर B है मैट्रिक्स एंड इट इज़ C, तो ये आपके पास दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर?
तो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ भी ये चेक करके देख सकते हैं. देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू this particular property of the determinant. This is very important property to check on. Next property, which is the major which plays the major role in solving the answers or solving the determinants. Very important exercise is 4.2. Maximum we do is this property. तो क्या कहा है, if each element of a row of a determinant is multiplied by some constant and then added to the corresponding element of another row, then the value of determinant remains unchanged. क्लियर? समझना है इस बात को कि मैंने किसी भी रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने उसे R2 से प्लस कर दिया, तो R2 क्या बन गई? लेट इट बी R2 प्लस KR1. तो ये एक डिफरेंट R2 दे देती है और जिससे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी टैकल हो जाती हैं. तो आई वॉन्ट टू हैव सम एग्जाम्पल और उससे क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करने हैं वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे. और नॉर्मली देखोगे कि क्वेश्चन लिखा होता है विदाउट एक्सपैंडिंग prove that this determinant is 0 or this determinant is this. Clear? So let's take an example. So I'm taking here, let A be, this is 1 1 1 A B C A A B. Clear? So I have this determinant A. Clear? The question is to evaluate. इसका आंसर निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है. ठीक, अब मुझे ये 1 1 दिखाई दे रहे हैं. क्लियर? मेरा काम कितना आसान हो जाएगा जब मेरे पास यहाँ पे हो पॉसिबली क्या हो जाए कि ये 1 0 बन जाए और आपके पास एक ही रो बचे जिससे मुझे एक्सपैंड करें और मेरे पास 3 टर्म्स नहीं आए, 3 को फैक्टर्स नहीं आए, तीनों टर्म के एक ही को फैक्टर आए, बाकी दोनों तो ज़ीरो हो गई. क्लियर? तो माई अल्टीमेट गोल इज़ टू मेक इट ज़ीरो. तो मैं सिंपली क्या अप्लाई करूँगी यहाँ पे कि मैं R2 को पॉसिबली R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस R1 अगर मैं करूँ. क्लियर? मैं कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकती थी इफ़ आई हैव दिस नीड. तो अब मैं क्या करूँगी, ऊपर की तो हमने सेम लिखी, अब इसको क्या करना है, दिस माइनस दिस R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो बन जाएगा, B माइनस A बन जाएगा और यहाँ CA माइनस BC बन जाएगा. ये भी ज़ीरो हो गया, C माइनस A बन गया, हमने R1 माइनस करना है तो AB माइनस BC हो गया. क्लियर? अब मेरे पास ये B माइनस A, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास 1 A B C है, ये 0 0 बन गया, दिस इज़ B माइनस A C माइनस A और यहाँ भी अगर आप C कॉमन निकाल लें तो A माइनस B बन जाता है. यहाँ आप B कॉमन बना लें तो A माइनस C कॉमन है. अब मैं एक फैक्टर यहाँ से और एक फैक्टर यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, तो वो K फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा. B माइनस A मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ और C माइनस A मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ. तो आई एम लेफ्ट विद 1 A B C 0 1 माइनस C 0 1 माइनस B. तो मेरा कितना काम कम हो गया. अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करती हूँ तो आई गॉट, ये आगे के एक्सप्रेशन तो रहेंगे, तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि ये तो दोनों ज़ीरो हो गए और 1 के साथ मैंने अगर क्रॉस किया तो इट इज़ माइनस B माइनस C.
यही बच जाएगा. And just simplifying, b minus a, c minus a, and I'm left with minus b plus c, or c minus b. Clear? तो इस c माइनस को अगर आप हैंड वो भी करना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, इस माइनस को मैं यहाँ एडजस्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा a बाय माइनस b, b minus c, c minus a. This is your answer. Clear? So these are the properties which are very important to discuss and to notice it down to make our determinants. This is the 6-marker question in our CBSE exam. Normally it is a 6-marker question, and in competitives also it has a very important value. So try practicing this properties into the question. Exercise 4.2. My next video will be on exercise 4.2, and just have a quick look on the some other properties, some more basic properties. That is, first is, if each element of a row or column of determinant is 0, then its value is 0. But obvious कि मैंने 1 0 0 0 लिख दिया, बाकी कुछ भी हैं तो मेरे पास इससे एक्सपैंड करेंगे तो सब ज़ीरो ही आएगा, तो दिस इज़ ज़ीरो. एंड इफ ए इज ए आई जे इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसे क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास a1 a2 a3 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स यही होती है. क्लियर? तो मेरे पास a1 क्या होगा, a2 a3, बाकी सब a1 इंटू a2 इंटू a3 बच जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे. क्लियर? तो यही कहना चाह रहा है कि वही हर डायगोनल, sorry, next property, what is saying that if a and b are square matrices of order n, then mod ab is equal to, it's not mod ab, I'm sorry, it is determinant ab is equal to determinant a into determinant b. तो ए बी आप मल्टीप्लाई, स्क्वायर मैट्रिसेस में हमारा वो शोर ख़त्म हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है. वी सिंपली मल्टीप्लाई द रोज इनटू कॉलम easily without taking much stress, तो फटाफट से. तो पर डिटर्मिनेंट्स में उस ए बी का भी आप ये a इंटू बी वाला फॉर्मूला यहाँ चलता है, तो ये हमें ध्यान देना है. नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास मान लो ए आई जे एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, और एक दूसरा मैट्रिक्स आप क्रिएट करते हो with its cofactors. This is the cofactors of each element of A. तो क्या होता है कि मॉड C का जो सॉरी फिर से वही गलती, डिटर्मिनेंट जो है C की जो आप वैल्यू निकालेंगे, मॉड C इज इक्वल टू मॉड A रेज़ टू पावर n माइनस 1. मतलब कि आपने जो इसका डिटर्मिनेंट निकाला है वही आपका कहीं ना कहीं ये निकालते हुए आपके पास यहाँ इस तरह से रह जाता है. क्लियर? तो कहीं ना कहीं आपके पास इसकी वैल्यू रेज़ टू पावर n माइनस 1, और n क्या है, जो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स ली थी जिसका ऑर्डर n है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. आई होप कि हमें चीज़ें समझ आई होंगी और हम इसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में. आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग एक्सरसाइज 4.2. थैंक यू सो मच.